దిగమ్మా దిగి ఆగిపోతుందన్నా దిగుతా ముందు మన భరతమాత విగ్రహానికి జ్యోతి ప్రజల వేయాల్సిందిగా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కోరుతున్నాను. దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ పండిత్ లవ్ 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 రెడీ పెట్టండి. లవ్ లవ్ స్టార్ట్ చేయండి. ప్రెస్ మిత్రులకు ముందు సీట్లు ముందు వరుస ప్రెస్ మిత్రులకు దయచేసి వెనకాల కూర్చోవాలి. దయచేసి వెనక చేయడం చూస్తామని ముందుకు అందరూ బయట లేవాలని చేసి లోపల కూర్చోండి ప్లీజ్. దయచేసి అందరూ కింది తీయాలి ప్లీజ్. కింద కింద కూర్చున్నాం. దయచేసి కారు పార్కింగ్ ఎవరు వాళ్ళందరూ కావాలి లోపలికి. దయచేసి కారు పార్కింగ్ ఎవరు వాళ్ళందరూ లోపలికి కావాలి. లైవ్ స్టార్ట్ అయితే మన ప్రధానమంత్రి గారిది. ఆ తర్వాత
దయచేసి స్టేజ్ ఖాళీ చేయండి, దయచేసి ప్లీజ్ స్టేజ్ ఖాళీ చేయండి ప్లీజ్, దయచేసి కూర్చోండి, కింద కూర్చోండి ప్లీజ్, కింద కూర్చోండి, మీరు కింద కూర్చోండి. వెంటనే దించారా మీరు? నా సీట్ అమ్మ, నా సీట్, నా సీట్ అమ్మ, నా సీట్. ఇప్పుడే పరిచయం అనే నాకు అర్థం కాదు. దయచేసి స్టేజ్ దిగండి, కూర్చోండి కుర్చీలలో. అరే ఎన్నిసార్లు చెప్పాను అందుకు? సారీ అందరు దించు. దయచేసి కుర్చీలలో కూర్చోండి ప్లీజ్, లైవ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, కుర్చీలో కూర్చోండి. బాబు లైవ్ తీసుకోవా, లైవ్ లైవ్. సౌండ్ పెట్టండి, మీకు సౌండ్ పెట్టండి. मंडियों को बंद कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ ऊपर से प्रावधान आपको बताता है कि బయట ఉన్న లోపల లేకపోతే కూర్చోండి, బయట ఉన్న లోపల రండి. ఒకసారి బయటకు వెళ్ళండి, తొలగి కూర్చోబెట్టు బయట. దయచేసి కార్యకర్త సోదరులు రైతులందరూ కూడా తమ తమ కేటాయించిన సీట్లలో కూర్చోవలసిందిగా. ఇంకా కుర్చీలు ఉన్నాయి, ప్రెస్ వాళ్ళు తప్ప మిగతా వారు ఎవరు కూడా ఇక్కడ ఉండొద్దు. దయచేసి ముందట ప్రెస్ వారు తప్ప మిగతా వారు ఎవరు కూడా, సోషల్ మీడియా కూడా కొంచెం ఏదైతే కార్యకర్త సోదరులు ఉన్నారో వారందరూ కూడా వెనుకకి వెళ్ళి అక్కడ కుర్చీలు ఉన్నాయి, కుర్చీలు ఉన్నాయి, లైవ్ స్టార్ట్ అవుతాయి. కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండి, గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు మనకు సందేశం ఇస్తారు. వారు నూతన వ్యవసాయ చట్టాలు, అదేవిధంగా కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి ఈరోజు 9 కోట్ల మంది రైతులకు 18,000 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు రైతుల అకౌంట్లో నేరుగా వేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దయచేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని సజావుగా అల్లరి చేయకుండా రైతులు వారి యొక్క సందేశాన్ని వినే విధంగా కార్యకర్త సోదరులందరూ సహకరించాలని కోరుచున్నాము. ఇంకా రైట్ సైడ్ లో మీరందరూ సోదరులందరూ ఇక్కడ ఉండటున్న వారందరూ కూడా కార్యకర్త సోదరులు దయచేసి రైట్ సైడ్ లో కుర్చీలు ఉన్నాయి కాబట్టి దయచేసి మీరు వెనుకకి వెళ్ళి కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాను. దయచేసి నిశ్శబ్దం పాటించగలరని రైతులను కార్యకర్త సోదరులను కోరుచున్నాను. ఇప్పుడు గౌరవ अब हम केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री जी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से सविनय अनुरोध करते हैं कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करें।
के लिए हम सबके प्रिय नेता हमारे देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी, राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, राज्यों के मंत्रीगण, केंद्र सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और विकास खंड और पंचायत क्षेत्र में इस कार्यक्रम में भाग ले रहे करोड़ों करोड़ भाइयों और बहनों का मैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर हमारे मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय रूपाला जी और माननीय कैलाश चौधरी जी, इनकी ओर से भी आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। आज का यह कार्यक्रम हम सबके प्रिय नेता और संपन्न हो रहा है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सुशासन के पक्षधर थे। దయచేసి సోదరు కార్యకర్త సోదరులు రైతు సోదరులందరూ కూడా ఎన్నిక జరగాల్సిందిగా కోరుతున్నాం। లైవ్ लोगों की ओर से माननीय अटल जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। आज सुशासन की दृष्टि से बहुत बड़ा काम हो रहा है और मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा को भी बहुत संतोष मिलेगा, क्योंकि वो सुशासन और पारदर्शिता के पक्षधर थे। और आज माननीय मोदी जी के कर कमलों से देश के 9 करोड़ 4 लाख किसानों को 18,098 करोड़ रुपया बटन दबाकर उनके खातों में 2 घंटे में पहुंचाने का कार्यक्रम होगा। यह पहली बार सारा देश और दुनिया इतनी बड़ी योजना को देख रही है कि इस योजना के क्रियान्वयन में न कोई बिचौलिया है, न कोई दलाल है। हम सब जानते हैं कि एक समय था जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री यह कहा करते थे
आगे यह नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण ही संपन्न हो सका है। देश में 86% छोटे किसान हैं। इन किसानों की आय बढ़ाने के लिए, इन किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए, ये किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हों, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट इन्हें मिल सके, इसलिए 10,000 नए एफपीओ बनाने का काम भी मोदी जी के नेतृत्व में ही आज देश में संपन्न हो रहा है। हम सब जानते हैं कि यह जो हमारी पीएम किसान सम्मान निधि की योजना है, यह योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी है और इस योजना से गरीब किसान को बहुत लाभ हुआ है। यद्यपि प्रधानमंत्री जी ने पहले जब इस योजना का आरंभ किया था तो यह 2 हेक्टेयर तक के किसानों के लिए थी, लेकिन 2019 में जब सरकार दोबारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी तो प्रधानमंत्री जी ने इस दायरे में देश के सभी किसानों को ले लिया है और इसका लाभ सब किसानों को मिल रहा है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज देश में 11 करोड़ 40 लाख किसान इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हुए हैं। 10 करोड़ 59 लाख किसानों को अभी तक 96,000 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंचाया गया है। कोविड और लॉकडाउन की स्थिति में भी ये पैसा उनके यहां जाता रहा है। आज देश में पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य इस योजना से जुड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसान लगभग हैं जो पात्रता की सूची में हमारे अनुमान के अनुसार आ सकते हैं। उनको हर साल 4,0200 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष मिल सकता है, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस मामले में निर्णय नहीं किया है। मैं इस अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार को भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी वो इस योजना से जुड़ें, जिससे 4,200 करोड़ रुपया जिस लाभ से पश्चिम बंगाल के किसान वंचित रह रहे हैं उनको वंचित न होना पड़े और वो भी इसका लाभ उठा सकें। सारा देश इस बात को जानता है कि प्रधानमंत्री जी ने जहां एक के बाद एक कृषि के क्षेत्र में गैप भरने का काम किया, 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का विषय हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग के लिए फंड्स के प्रावधान का विषय हो, और चाहे नए कानूनों के माध्यम से किसानों को स्वतंत्र करने का मामला हो और किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का मामला हो, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कदम उठाए हुए हैं। सारा देश इन कदमों का स्वागत कर रहा है। मुझे इस अवसर पर यह भी कहना पड़ रहा है कि पंजाब सहित थोड़े से कुछ किसान भाई और बहन हैं जिनके मन में कहीं न कहीं नए कानूनों के मामले में भ्रम पैदा हुआ है। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर सरकार ने वार्ता का निमंत्रण दिया है, वार्ता पर आए और मुझे आशा है कि किसान इस बात को समझेंगे, नए कानून के मर्म को समझेंगे, नए कानून के महत्व को समझेंगे और हम समाधान की ओर अग्रसर होंगे। मैं इस अवसर पर मुझे यह भी प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जहां देश के हर विकास खंड और हर पंचायत में लोग उनको आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, वहीं ऑनलाइन 8 करोड़ 2 लाख लोगों ने अपने आप को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं और पुनः प्रधानमंत्री जी का करोड़ों करोड़ किसानों की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद। जय भारत। अब हम पीएम किसान योजना के तहत देश में लाभान्वित किसानों के अनुभव की लघु वीडियो फिल्म चलाने का अनुरोध करते हैं। 24 फरवरी 2019, 24 फरवरी 2019 ये वो तारीख थी जब किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध भारत सरकार ने देश के अन्नदाता को एक नया सहारा और उसके योगदान को सम्मान दिया। किसानों को सीधी मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में अर्पित करता हूं।
दशकों से उपेक्षित और विकास से वंचित हमारे अन्नदाता को हर वर्ष 6,000 रुपए की सहायता राशि आज सशक्त बना रही है। और पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 10 करोड़ 60 लाख भूजोतधारी किसानों के खातों में 95,000 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। इस स्कीम से बहुत छोटे बड़े जिम्मेदारों को सबको फायदा हुआ और 4 महीने में किस्त आ जाती है बैंक में। मेरे में 6 किस्तें आ चुकी है, जिससे हमारे घर का और कृषि का सब काम चलता रहे। हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किस्त बैंक खातों में सीधे पहुंचने पर जहां किसानों की बीज, खाद, कीटनाशक जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी हुई, वहीं इस सम्मान राशि ने हमारे कृषक भाइयों को महाजन के कर्ज में डूबने से बचाया है। हमें हर वक्त साहूकार के पास जाना पड़ता था, भाई हमें 1,000 रुपए दे दे, 2,000 रुपए दे दे, कर्जा पानी से अपनी व्यवस्था चला पाते थे। अब हमें वो सब जरूरतें ना अपने बैंक से सम्मान निधि से पूरी हो जाती है। जो पैसा મળે એનાથી આ વર્ષે અમારે ખાતર, જીવાણ, દવાઓનો ખર્ચો નીકળી જાય છે। તેનાથી સમયસર દવાઓ અને ખાતર મળવાથી ઉત્પાદન પણ સારું આવ્યું અને એનાથી ખૂબ અમને આ વર્ષે લાભ થયો। ఇప్పుడు మాకు నేరుగా వచ్చినందున ఈ పైసలు మాకు మంచి అవసరం పడుతున్నవి। ఈ పథకం ప్రవేశపెట్టిన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారికి నా యొక్క నమస్కారాలు। उधर कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान भी 43,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को न किसी के सामने झुकने दिया और न ही उनके कृषि कार्य को रुकने दिया। लॉकडाउन में हमें समय से पैसा आया, बाकी हमें जो लॉकडाउन में जैसे सब्जी का काम करते, सब्जी का हमारा काम खत्म हो गया था, माल जा नहीं पा रहा था, उससे हम हमारे घर खर्चे हमने चलाए उससे। और आज ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब 9 करोड़ भूजोत कृषक परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर की जा रही है। लाभार्थियों की ये संख्या कई देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। पीएम किसान सम्मान निधि के ये 2 साल हैं भूजोत किसान की मुस्कान के, कृषक के सशक्तिकरण और सम्मान के। आज भारत सरकार से सहायता पाकर मेरे देश का किसान खुशियों की फसल बो रहा है और किसान के साथ साथ पूरा देश सफल हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की नई किश्त का हस्तांतरण। वीडियो के लिए धन्यवाद। भारत के सभी हिस्सों से इस योजना के सकारात्मक अनुभव और प्रतिक्रिया देखकर हार्दिक अनुभूति हुई। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वे बटन दबाएं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी करें। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में आज ही तत्काल अंतरित हो जाएगी। माननीय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय प्रधानमंत्री जी से देश के विभिन्न भागों के किसानों के साथ इस विभाग की योजनाओं के तहत उनके अनुभव के बारे में पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले से श्री गगन पेरेंग जी से आमंत्रित करूंगा कि वे पीएम किसान योजना के साथ ही ऑर्गेनिक एफपीओ के लाभार्थी हैं। श्री गगन पेरेंग जी। गगन जी नमस्कार। प्रणाम सर। जय हिंद। अरुणाचल के लोगों को तो जय हिंद कहना होता है। आपको पीएम किसान सम्मान निधि से जो पैसा मिल रहा है उसको आप कैसे उपयोग करते हैं? गगन जी इतने दूरी पर हैं, इतने पहाड़ों में हैं, कैसे करते हैं आप?
सर मुझे हर साल हर महीने के 4 महीने के पीछे 2000 करके 3 बार मिला। कुल मिला के मुझे 6000 मिला। उस पैसे को मैं ऑर्गेनिक खाद, दवा और कुछ मजदूरी के ऊपर खर्चा किया। और फिर किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग किया तो कुछ तो करना पड़ा होगा आपको। सर एफपीओ बनाया हमने, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के हमारा उसको और आगे बढ़ा रहा अभी। अच्छा, एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े किसानों का। आपके साथ कितने किसान जुड़े हैं और ये कैसे काम करता है? सर हमारे दे रहा है गगन जी मेरी बात। सर कितने किसान जुड़े हैं आपके साथ और किस प्रकार से काम करते हैं? 446 अच्छा, ऑर्गेनिक अदरक उगाते हैं हम। क्या क्या उगाते हैं? ऑर्गेनिक जिंजर। अच्छा, जिंजर और जिंजर उगाते हैं। और क्या मार्केट मिल जाता है? मार्केट फिलहाल तो सर अभी अपना इंडिया के अंदर में हमने बेंगलोर में पिछला बार बेचा, उसके बाद दिल्ली में। अच्छा, मतलब आप एक प्रकार से छोटे किसानों को प्राइवेट कंपनी के साथ जोड़ते भी हैं। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? सर हाल ही में हमने प्रवक्ता कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा जितना प्रोडक्ट है उसका फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हुआ गगन जी आपने अपना अनुभव शेयर किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। और आपने इतने सारे किसानों को जोड़ा है, ये भी बहुत प्रसन्नता का विषय है। मैं धन्यवाद करता हूं आपका। धन्यवाद गगन जी। हमने उड़ीसा के लिए केसीसी का उपयोग किया है। केसीसी और पीएम किसान की योजना के लाभ से मेरे जीवन स्तर में सुधार हुआ है, इसीलिए आपको प्रधानमंत्री जी मेरा नमस्कार। नवीन जी, आपके पास कितनी जमीन है और आपको ये जो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की सुविधा जो आपको मिली है, तो अब आप ये खर्च कहां से करते हैं? पहले क्या करते थे? पहले कैसा करते थे? मेरे पास 1 एकड़ 40 डिसमिल जमीन है। अच्छा, इतना छोटी जमीन है? छोटी जमीन है। हाँ, उसमें धान का फसल उगा रहा हूं। मुझे अन्य फसल करने के भी शौक है। तो कुछ शुरू किया है? अभी तो कुछ किया नहीं हूं, एक शौक तो है। नहीं, करना चाहिए। अच्छा विचार आपको आया है, क्योंकि हमने इस प्रकार से हिम्मत के साथ नई चीजें करना चाहिए। देखिए नवीन जी, अटल जी की सरकार ने